نصر کا بیان ہے کہ میں غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر تقریر سن رہا تھا. کہتے ہیں غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر تقریر سن رہا تھا. سنتے سنتے ان کو نیند آ گئی. تو نیند جب ان کو آئی تو پسینہ میں سرابور ہو گئے. اور غوث اعظم ان کو جیسے نیند آئی، غوث اعظم تقریر کو بند کر کے ممبر سے نیچے اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اور غوث اعظم ہاتھ باندھ کر غوث اعظم کھڑے ہو گئے ان کے سامنے. اور جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اچانک جگے، پسینہ میں سرابور تھے. تو اس کے بعد سے جیسے ان کی آنکھیں کھلی تو غوث اعظم نے کہا، اے ابی نصر، یہ بتاؤ اس وقت خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے؟ واہ واہ واہ، سمجھئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں حضور، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. آپ نے فرمایا، اب مسلمانوں ہوتا کیا ہے، لوگوں نے پوچھا اے ابی نصر آپ بتائیے غوث اعظم کیسے جان گئے کہ مصطفیٰ خواب میں ہے؟ تو کیا ابی نصر جواب دیتے ہیں، اے لوگوں، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم بیداری میں اسے دیکھ رہے تھے، اسی لیے غوث اعظم ممبر سے اتر کر نیچے آ گئے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ کہ میں پیش کر رہا تھا ہاں کہ جشن غوث الورا ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا سوال کر دے، کیونکہ آئے دن ہم کو جانا ہوتا ہے اسٹیشن پہ جا کر تقریر کرتے ہیں، کرتے 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 تجربہ ہو جاتا ہے. اور تجربہ تو جب تک زندہ رہے گا حاصل کرتا رہے گا. بس سمجھ گئے، جب تک زندہ رہے گا وہ حاصل کرتا رہے گا. کیونکہ میں کچھ جگہ پر جانے کے بعد سے مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں، ایسا بولے ہوتے تو اچھا ہوتا. تو میں وہاں پھر بعد میں گیا تو میں نے سمجھا دیا کہ سن لیجئے، اگر میں نماز پہ تقریر بول کے جاؤں تو جو واقعی مجھ سے حسد رکھتا ہے وہ کہے گا نماز پہ تقریر بول کے گئے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکات پہ بول کے گئے ہوتے تو اچھا ہوتا. اور جب زکات پہ بول دیا تو بولے لوگ زکات تو دے ہی دیتے ہیں، پیسہ رکھ کر کے حج نہیں کرتے، اگر حج پہ بولے ہوتے تو اچھا ہوتا. تو بتائیے چھوڑے گا کہیں سے وہ؟ میری بات نہیں سمجھے گا؟ چلو وہ نہیں چھوڑے گا، کچھ نہ کچھ نکال ہی دے گا. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ میں بتا دوں ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی، جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، دخلت الجنہ، مرتے ہی وہ جنت میں چلی گئی. نبی فرماتے ہیں وہ عورت مرتے ہی جنت میں چلی گئی. مگر یاد رہے مسلمان، اس پر تو خوشی ہے، مگر اسی کو پلٹوار کر دیا جائے تو جہنم میں بھی چلی جائے گی. سمجھے کہ نہیں آپ میری بات؟ اگر دلی ناراض ہے اس کا شوہر اس سے تو انجام بھی بڑا خطرناک ہوگا، بڑا ہی سنگین ہوگا. اور پھر میں بتاؤں مسلمانوں، ایک صاحب تھے بڑے نیک پرہیزگار، لیکن ان کی بیوی کیا تھی؟ تو ان کی بیوی ہمیشہ ان کی بغاوت برائی کرتی تھی، اور بڑے نیک پرہیزگار تھے. تو انہوں نے سوچا، ارادہ کیا کہ آج کیوں نہ اسے کوئی کرامت دکھا دوں. بات کو سمجھیے گا، انہوں نے ارادہ کیا کیوں نہ اسے کوئی کرامت دکھا دوں. وہ گئے، جب دیکھے ان کو معلوم تھا کہ میری بیوی اس وقت چھت پہ رہتی، تو جنگل میں گئے، وظیفہ پڑھ رہے تھے. وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہوا میں اڑنے لگے، اور اڑتے ہوئے اپنے ہی چھت کے اوپر سے کافی اوپر سے گزرے. اب ان کی بیوی دیکھی اور دیکھ کر کے کیا بولی، آج وہ آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی بزرگ یہ ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، بہت وظیفہ کرتے ہیں، آج میں ان کو بتاؤں گی. پھر وہ آگے جا کر کہیں اتر گئے، اور پھر اپنے گھر آئے. تو آنے کے بعد سے وہ کیا بولی ان کی بیوی، آج میں دیکھی ہوں کسی بزرگ کو، آپ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز مصلی ہمیشہ لیے رہتے ہیں، آج میں کسی بزرگ کو تو کہاں دیکھی ہو؟ تو میں دیکھی ہوں چھت کے اوپر سے مصلی پر کھڑے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو اب مسلمانوں انہوں نے کہا وہ تو میں ہی تھا. تب کیا بول رہی ہے عورت، اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں. بات سمجھیے گا، جی جی، جو اندر بغض رکھا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمی نکال دے، کہیں نہ کہیں سے کمی وہ نکال دے. یاد رہے یہ سب خرابیاں نہیں ہونی چاہیے. میں بتاؤں مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں یہ بات بڑی مضبوط مستمد
हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं, ऐ आयशा, जब तुम नाराज होती हो तो भी मैं जान लेता हूँ, और जब तुम मुझसे राजी होती हो तो भी मैं जान लेता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जान लेते हैं? तो मुसलमानों, नबी ने फरमाया, जब तुम नाराज रहती हो तो किसी बात को मनवाने के लिए क्या कहती हो? इब्राहिम के रब की कसम, ये काम ऐसा नहीं ऐसा है। और जब तुम राजी रहती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, ये काम ऐसा नहीं ऐसा है। तो मुसलमानों, अब ये कि नबी ने जब फरमा दिया मैं जान जाता हूं कब तुम मुझसे राजी हो कब तुम नाराज हो, तो हजरत आयशा जवाब क्या देती हैं? हर औरत को इस पर अमल करना चाहिए। हजरत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जबान से नाम बदल देती हूँ, दिल में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। समझिएगा। तो याद रहे, दो आदमी जब एक साथ में है, जिंदगी भर के लिए साथी बना दिए गए, तो हो सकता है बात बिगड़ जाए, कभी हो सकता है कुछ नीचे हो जाए, मगर वो जबान ही तक होनी चाहिए, दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो जबान ही तक रहनी चाहिए, वो दिल तक नहीं रहनी चाहिए। मगर याद रहे, होता क्या है, लोग इस तरह की रंजिश कर बैठते हैं, आपस में तफरका कर बैठते हैं, हम इससे कलाम नहीं करेंगे, गलत सलत कलाम बोल देते हैं। और याद रहे ये भी बात, ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी। सहाबा ने पूछा इसकी वजह क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औरत कहेगी तुमसे ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, 20 मर्तबा ला दोगे, अगर एक मर्तबा उसकी मर्जी के मुताबिक न लाओगे तो क्या बोलेगी? आज तक तुमने मेरे साथ कभी भलाई की नहीं है, तो जो तुम किए हो उस पर भी पानी फेर देती हो। सच है। यही चीज बंदे को कहां पहुंचा देगा? जाना। याद रहे, इन सारी चीजों पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए और अपनी जिंदगी उस तरह गुजारने की कोशिश करो जैसे कि सहाबे कराम गुजारे हैं, औलिया अल्लाह गुजारे हैं, उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। याद रहे, हम उनकी तरह नहीं हो सकते, मगर हाँ, दलील में उन्हीं को पेश किया जाएगा, उन्हीं के तर्ज़ अमल पे चला जाएगा, उन्हीं के तरीके पे चला जाएगा। याद रहे मुसलमानों, जब उनके तरीके पे चलेंगे तो याद रहे, न पूरे तरीके पर, चंद बातों पे चलेंगे, अल्लाह हमारे अमल को न देखेगा, अपने प्यारों के सदके में हमारा बेड़ा पार बना देगा। अब ये जश्न गौसुल वाला माँ हुसैनुल कादिरिया में है। हज़रत हसन अस्करी अलैहिर्रहमा के इंतकाल का वक्त करीब आया। ये कब के बुजुर्ग हैं? हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पैदा होने से तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। यानी अभी गौसे आज़म को पैदा होने में 400 साल बाकी है, उस वक्त के बुजुर्ग हैं। हज़रत हसन अस्करी अलैहिर्रहमा के जब इंतकाल का विसाल का वक्त करीब आया, आपने अपने मुरीदों से कहा, चाहने वालों से कहा, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, जाओ जाकर शेख मारूफ करकी को बुला कर लाओ। मुरीद गए और जाकर बुला कर लाए। शेख मारूफ करकी ने कहा, आपने मुझे क्यों याद किया, क्यों बुलाया? तो हजरत हसन अस्करी अपना जुब्बा देते हैं, रख लो। उन्होंने कहा क्या करूंगा? तो मुसलमानों, हजरत हसन अस्करी कहते हैं 5वीं सदी के आखिर में अल्लाह का एक नेक बंदा, मुकर्रम बंदा इराक में पैदा होगा। उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, लक़ब मुहीउद्दीन होगा। आसमान की बुलंदी पर अपनी कुर्सी लगाएगा। ये जुब्बा उस तक पहुंचा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब शेख मारूफ करकी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा, जाओ जाकर जुनैद बगदादी को बुला कर लाओ। हजरत जुनैद बगदादी को बुला कर लाया गया। ये जुब्बा आपने उनको दे दिया, एक के बाद दिगरे, करनन बादा करने, नस्लन बादा नस्लीन। वो जुब्बा 497 हिजरी में गौसे आज़म को मिला, जिस वक्त गौसे आज़म की उम्र 27 साल की थी। और नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर जब मुसलमान हुए तो उनकी उम्र 27 साल की थी। और जब मुस्तफा मेराज को गए तो 26 का दिन गुजार कर 27वीं की रात को मेराज हो गए। सुभान अल्लाह। आज़म को जुब्बा कब मिला था? 27 साल के लिए। तफरीहुल खातिर में हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा, ये भी गौसे आज़म से पहले के बुजुर्ग, हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पैदा होने से पहले जितने वली आए, जितने गौस आए, जितने अब्दाल आए, जितने अगवास आए, जितने महबूब बंदे आए, जितने खास बंदे आए, सबने ये खबर दी कि गौसे आज़म आए।
آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے بھائی، دیکھیں لائٹ گئی کیا؟ جنگلیٹ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك صلوا عليه صلاة وسلام. یاد رہے چند لوگ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، مگر وہ کسی حاجت کسی ضرورت سے گئے ہیں. انشاءاللہ وہاں قریب بہت جلد آ جائیں گے. آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ سماعت کریں. میں پیش یہ کر رہا تھا، حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی غوث ابدال دنیا میں آئے سب نے یہ خبر دی کہ غوث اعظم آئیں گے. جیسے کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے انبیاء خبر دیتے رہے محمد آئیں گے، مصطفیٰ آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے، ٹھیک اسی طرح سے غوث اعظم کے آنے سے قبل جتنے اولیاء اللہ آئے سب یہ خبر دیتے رہے غوث اعظم آئیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت کر رہے مسلمانوں، سارے انبیاء میں رسول اعظم مقام ہمارے نبی کو ملا ہے، اور سارے اولیاء میں غوث اعظم کا مقام عبدالقادر جیلانی کو ملا ہے. سارے انبیاء مل کر مصطفیٰ کے مثل نہیں ہو سکتے، تو سارے اولیاء مل کر غوث اعظم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول غوث اعظم رضی اللہ عنہ. آئے بھی سن لیں کیا گفتگو حضرت، بڑی پتے کی بات، سن لیں یہ بات، ذہن نشین کر لیں. ہر نبی کی امت میں غوث دیا گیا ہے، غوث اعظم نہیں دیا گیا. کسی بھی نبی کی امت میں غوث اعظم نہیں دیا گیا. غوث اعظم رسول اعظم کو دیا گیا. رسول اعظم کیا یاد رہے مسلمان، غوث اعظم کسی کی امت میں نہیں دیا گیا. سلیمان علیہ السلام کی امت کا غوث کون تھا؟ آصف ابن برکیہ جو تخت کو اٹھا کر لایا تھا، وہ غوث تھا، غوث اعظم نہیں تھا. اب یہ کہ بحث کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اسرار المعانی میں ہے حضرت ابو عبداللہ علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ عراق میں ایک عارف کامل کا ظہور ہونے والا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اذکار الابرار میں ہے حضور غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 32 سال پہلے حضرت ابو بکر حوار علیہ الرحمہ ایک مجلس میں وعظ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اب اللہ کا وہ مقرب بندہ آنے والا ہے جو آسمان کی بلندی پر اپنی کرسی لگائے گا اور حکم الہی سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے. اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر میں محیب الدین اربلی نے مکاشفات جنیدیہ کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ جو وہاں کا خطبہ دے رہے تھے اور اچانک آپ کے قلب مبارک پر تجلیات الہی کا ورود ہوا. آپ عالم کشف میں مستغرق ہو گئے. اور کیا کہا جنید بغدادی نے؟ قدمہ علی رقبتی بغیر جہود، اس کا قدم میری گردن پر ہے بغیر کسی انکار کے. اتنا بول کر جنید بغدادی ممبر کی ایک سیڑھی نیچے اتر آئے. بعد میں مریدوں نے کہا تھا اے حضور والا، اے جنید بغدادی یہ بتائیے وہ کون اللہ کا مقرب بندہ ہوگا جو آپ کے گردن پہ اپنے قدم کو رکھے گا؟ تو جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 200 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک اللہ کا مقرب بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا، لقب محیب الدین ہوگا، آسمان کی بلندی پر اپنی کرسی لگائے گا اور ایک دن وہ اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پہ ہے. اے مریدو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں عالم کے سارے ولی اپنی اپنی گردن کو جھکا دیں گے، سب کے گردنوں پہ وہ اپنا قدم رکھے گا. اے میرے مریدو تم گواہ ہو جاؤ، آج ہی سے عبدالقادر کے لیے میں نے سر کو جھکا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز کو بلند کر کے جواب دیں. یہ تو بتاتے چلے آئے، اب دیکھنے والے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تو بتائے گے. عبداللہ کمینی بیان کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
कि वो दिन आ गया कि गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े हैं, खड़े होकर गौसे आजम फरमा रहे हैं बहजतुल असरार सफा नंबर 15 कदमी हासिही अला रक़बति कुल्ली वली इल्लाह। गौसे आजम ने ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब गौसे आजम ने ऐलान किया तो गौसे आजम की मजलिस में गालिबन 2000 वली बैठे हुए थे। मुसलमानों, शेख अली बिन हियती अलैहि रहमा अपनी जगह से उठे और गौसे आजम के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद रियली तौर से गौसे आजम का कदम पकड़ के अपने कंधे पर रख लिए और आपने कहा वाकई खुदा ने आपको मकाम अता किया है। और 2000 वली थे, सब के सब अपनी 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 गर्दनों को झुका दिए थे। रवायतों में आता है आलम में जो वली जहां था गौसे आजम की आवाज को सुना था और सुनने के बाद फौरन अपने सर को झुका दिया था। अब सवाल ये पैदा होता उस वक्त हमारे सुल्तानुल हिंद कहां थे, ख्वाजा गरीब नवाज कहां थे, ये सवाल पैदा होता है। तो दो रवायतें हैं, एक रवायत में है गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, दूसरी में है खुरासान के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे। बहरहाल ये कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा इबादत में मसरूफ थे। जैसे गौसे आजम ने बगदाद में ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है, गरीब नवाज ने सुन लिया। तो अब ये कहा जाएगा या तो गौसे आजम ने आवाज को पहुंचा दिया या तो गरीब नवाज ने आवाज को सुन लिया। दोनों में से जो मानोगे हमारा ही मौक़िफ़ रहेगा। जिंदाबाद, दोनों में से जो अब होता क्या जब गरीब नवाज सुन लिए तो सुनने के बाद से सुनिए अब क्या होता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जैसे गौसे आजम का ऐलान सुने कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, याद रहे मुसलमानों जो बड़ा होता है वो हमेशा झुक जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुने सारे वलियों ने गर्दन को झुका दिया, ये रवायत है। मगर ख्वाजा गरीब नवाज जो सुने तो सुनने के बाद अपने सर को इस कदर झुकाए कि पेशानी जमीन को छूने लगी। जब इतना झुका दिए तब हमारे गरीब नवाज ने अपने हाथ को मोड़ करके ऊपर किया और कहा ना बला लाइनी बरासी, नहीं नहीं अब्दुल कादिर आपका कदम मेरे कंधे पर नहीं है, मेरी आंखों पर है और मेरे सर पर है। ये किसने जवाब दिया? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया। अब मुसलमानों में बताना चाहूंगा और कड़ी को आगे बढ़ा दिया जाए, बात को समझने की कोशिश करें। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल फरमाने के 156 साल के बाद, गरीब नवाज के विसाल फरमाने के 90 साल के बाद सिलसिला नक्शबंदिया के मुर्शिदी आजम हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा पैदा हुए। जब ये पैदा हुए इनके मुरीदों ने कहा था ऐ हमारे सैयद बताइए गौसे आजम के कदम के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद जवाब देते हैं कि ऐ मेरे मुरीदों गौसे आजम ने जो ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है तो मैंने अपनी गर्दन को नहीं बिछाया है बल्कि अपनी आंखों को गौसे आजम ने बिछा दिया है। ये मकाम किसको मिला है? ये मकाम हुजूर गौसे आजम को। ये तो बात तय है और ये बात साबित हो चुकी कि सारी औलिया की गर्दन को गौसे आजम के लिए मेंबर बनाया गया। इसीलिए हमारे इमाम कहते हैं जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मेंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नु का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब मैं बताऊं मुसलमानों जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला किया था और दुनिया ने मिलकर उसका मुकाबला किया था, पूरी दुनिया को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने कदमों के नीचे दबा दिया था। लोगों ने कहा था ये बता तेरे पास ये ताकत कहां से आ रही है? तो जवाब क्या दिया? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप मुझे गोद में उठाए थे और गौसे आजम के पास लेकर गए थे। गौसे आजम ने अपने हाथ को मेरी पेशानी पर रख दिया था और रख कर मेरे लिए दुआ दिया था और मेरे बाप को ये बता दिया था कि जब तेरा बेटा जवानी की दहलीज को पहुंचेगा दुनिया इस पर हमला करेगी मगर पूरी दुनिया को कदमों के नीचे रहूंगा। मैं अपनी ताकत से नहीं लड़ रहा हूँ, गौसे आजम की ताकत से लड़ रहा हूँ। इसीलिए हमारे इमाम कहते हैं क्या कभी जिस पे हिमायत का होगा तेरा। वाह वाह वाह
तो याद रहे सलाहुद्दीन अय्यूबी की अपनी कामयाबी नहीं, ये गौसे आजम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मेरा सर झुक जाएगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा, मैं दुश्मन के सामने शेर हो जाऊंगा, मेरी रुसवाई नहीं गौसे आजम की रुसवाई होगी। ये कब्र को हमारा होगा, ये कब्र को हमारा होगा, क्योंकि गौसे आजम ने मेरे सर पे हाथ रख करके मेरे बाप को ये जमानत दी थी कि दुनिया इससे जंग करेगी, अब पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे रख डालेगा, और करके दिखाया सलाहुद्दीन अय्यूबी। पता ये चला मुसलमान, बुनियादी कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिलती है जब तक कि अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला न हो, सहारा न हो, जब तक कामयाबी नहीं मिलती। अब मैं बताऊं कि जो गौसे आजम से पहले थे वसाहिर, जो बाद में हुए, जो कयामत तक होंगे, आला हजरत क्या ही नक्शा खींचते हैं, क्या कलाम पेश किया आला हजरत ने, याद है मुझे कैसी अदावत रखते हैं, इल्म रखने वाले हमारी समझ में बात नहीं। आला हजरत कहते हैं गौसे आजम के साथ जो वाली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वाली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये मुसलमानों गौसे आजम के साथ। अब ये आला हजरत के भाई उस्ताद समर मौलाना हसन से कहा गया आप बताए गौसे आजम के कदम के बारे में, तो मौलाना हसन क्या ही प्यारा जवाब देते हैं, वहां सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, वहां सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहां है तेरा नक्श पा गौसे आजम, जहां है तेरा नक्श पा गौसे आजम। आगे बढ़कर के हमने पूछा सरदार मुफ्ती आजम हिंद आप क्या कहते हैं गौसे आजम के कदम के बारे में, तो मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मेरी बिसात क्या है, जब गरीब नमाज आंखों को बिछा रहे हैं, गरीब नमाज सर को बिछा रहे हैं, औलिया अल्लाह अपनी आंखों को दिल को बिछा रहे हैं, फिर भी खिराज अकीदत पेश करते हुए क्या कहते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और आगे बढ़कर कहते हैं कदम तो लिया औलिया ने सरों पर, कदम तो लिया औलिया ने सरों पर, तुम ही जानो इसके हिकम गौसे आजम, तुम ही जानो इसके हिकम गौसे आजम। तो मुसलमानों ये मकाम किसको मिला है, तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा देर बहस तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए मजबूरी सुबह तक ही सुबह नहीं, वैसे तो हमको उम्मीद है कि आप लोग हटेंगे नहीं, जाएंगे तो नहीं, ये तो हाँ ये तो तय है कि जाएंगे नहीं, ये फाइनल हो गया। मगर हाँ ये जरूर है कि बोलने वाले का इलाज न कराना पड़ जाए। हर एक चीज का दायरा बनाया है, हर चीज का एक दायरा, समझ रहे, दायरे से आगे नहीं जाना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े बात को आगे बढ़ाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहब हमसे सवाल किए कि मैं फला आलिम, किसी आलिम का नाम रखे, का नाम नहीं रखूंगा, बोले फला आलिम की मैं तकरीर सुनता हूँ, देखता हूँ बड़ी संजीदगी से आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, उसी तरह तकरीर करनी चाहिए, बहुत तेज तेज चिल्ला करके नहीं। बात को समझिएगा। तो मैंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपकी राय है। बात को समझ, मैंने कहा ये आपकी राय है, ये आपकी सोच है, मगर सुन लीजिए नबी के 4 खलीफा सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली, चारों का 4 मिजाज है। अकीदा एक, सिद्दीक़ अकबर का मिजाज कुछ और है, फारूक आज़म का कुछ और है, उस्मान गनी का कुछ और है, मौला अली का कुछ और है, मगर चारों असल से एक ही है। तो पता चला ये उलमाए कराम है, तो कोई किसी का अंदाज लेता, कोई किसी का अंदाज लेता, असल नियत दुरुस्त रखनी चाहिए, असल नियत दुरुस्त रखना चाहिए। वाह वाह क्या इशारा, तो अपने अपने समझाने का क्या इशारा है। आप तो समझ रहे हैं ना। हाँ मैं बता रहा था ये कलाइदुल जवाहिर में है,
हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु वाज फरमा रहे थे और वाज फरमाते हुए तकरीर करते हुए अचानक तकरीर को रोक दिए और गौसे आज़म हवा में परवाज करने लगे। अब लोग देखने लगे, कोई भी देखने लगेगा, लोग गौसे आज़म को देखने लगे। जहां तक लोगों की निगाहें काम की, गौसे आज़म को देखते रहे। उसके बाद गौसे आज़म लोगों की आंखों से ओझल हो गए। अब कुछ देर के बाद से गौसे आज़म फिर वापस पलटे और आकर के वहीं मिंबर रसूल पर खड़े हो गए। फिर तकरीर को अपने आगे बढ़ा देते हैं। जब मजलिस से फारिग हो गए, चाहने वालों ने, मुरीदों ने पूछा, हुजूर गौसे आज़म कहां गए थे हवा में परवाज करते हुए? अब फिर कुछ देर के बाद से वापस हुए। मामला क्या है, राज क्या है, भेद क्या है, असल क्या है, रम्ज क्या है, बता दिया जाए ताकि हमें तसल्ली मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, सुकून मिल जाए। तो गौसे आज़म जवाब देते हैं, मैं तकरीर कर रहा था जब तक कि मेरी निगाह क्या देख रही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हवा में परवाज करते हुए जा रहे हैं। जब मैंने उनको देखा तो तुरंत मुझे ये ख्याल आ गया कि जाने वाला इस्राइली है और मैं मुहम्मदी हूँ। और जैसे ये ख्याल आया तो मैंने कहा, लगा परवाज कितना लगाता है। मैंने भी परवाज लगाया और जाकर खिज़र को पकड़ लिया और मैंने कहा, वापस चलो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर सुन लेना, उसके बाद से जाना। मैं खिज़र को लेकर के आया, मेरी तकरीर सुन लीजिए, उसके बाद से गए। तो मुसलमानों, क्या मकाम गौसे आज़म को मिला है? आला हज़रत से जब कहा गया तो आला हज़रत कहते हैं, जाकर के खिज़र से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? बायजीद बुस्तामी से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? हसन अस्करी से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? मारूफ करकी से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? जुनैद बगदादी से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? शेख हम्माद से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? गरीब नवाज से पूछो क्या मकाम गौसे आज़म का है? बहाउद्दीन नक्शबंद से पूछो, वो बताएंगे। आला हज़रत कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है, शुक्र नशे को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, क्या मकाम गौसे आज़म का है? ये तो खिज़र अलैहिस्सलाम बताएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल बरा मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये बात को समझने की कोशिश करें। कायदुल जवाहिर का हवाला पेश किया और आगे बढ़ते। कायदुल जवाहिर में हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह आसमान जमीन पर साया किए हुए, ठीक उसी तरह मैं अपने मुरीदों पर साया किए हुए। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म खुद फरमाते हैं। आगे कहते हैं, अगर मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत रखने वाला, मुझसे अकीदत रखने वाला, मेरी ताज़ीम करने वाला अगर से ऊंचा मकाम पर नहीं है, लेकिन मुझे खुदा ने बुलंदी अता किया है, मुझे खुदा ने उरूज अता किया है। अब इतना फरमाकर गौसे आज़म क्या कहते हैं, खुदा की कसम मेरे कदम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि मैं अपने चाहने वालों को लेकर जन्नत में दाखिल वाह वाह वाह। और आगे मुसलमान आगे बढ़ते हैं, पति की बात समाप्त करें और आगे बढ़ते हैं। याद रहे, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा बगदाद से गायब हो गए। अब गौसे आज़म को लोग तलाश करने लगे, काफी लोग बेकरार हुए। और मुसलमानों, कमाल की बात, जैसे मुस्तफा कदम कदम पर मोजज़ा दिखाए, ठीक उसी तरह गौसे आज़म कदम कदम पे कर दिखाए। याद रहे मुसलमान, और ये भी जान लें, जो भी वली करामत दिखाते हैं, इनकी अपनी करामत नहीं होती है, बल्कि वो अपने नबी का मोजज़ा होता है, उनके नबी का वो मोजज़ा हुआ करता है, जो भी वली करामत दिखाते हैं। और ये भी जान लें, जिस शान का नबी होगा उसी शान के एतबार से उसके उम्मत के औलिया होंगे। जिस शान का नबी होगा उसी शान के एतबार से उसके उम्मत के औलिया होंगे। अब मुसलमानों में बताऊं, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु गायब हुए, एक मर्तबा मुस्तफा भी गायब हुए थे। आपने उलमा से सुना, काफी लोग तलाश किए, हज़रत अली रो रहे थे। उलमा से ये वाक़या सुने होंगे आप लोग, काफी रो रहे थे। हज़रत फातिमा गई थी, फिर सरकार को लाया गया। ठीक उसी तरह एक मर्तबा गौसे आज़म गायब हुए बगदाद से। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु गायब हुए, अब लोग तलाशने लगे। एक शख्स ने आकर के बताया
जैसे वहां पर बकरी का चरवाहा बताया मुस्तफा के बारे में, एक शख्स ने यहाँ पर बताया कि मैंने देखा गौसे आजम को दरियाए दिजला की तरफ जाते हुए, उसको दरिया नील भी कहते हैं और भी उसके कई नाम हैं। उसने कहा मैंने देखा गौसे आजम को दरियाए दिजला की तरफ जाते हुए। अब लोग दौड़े हुए गए दरियाए दिजला किनारे, तो क्या देख रहे हैं, गौसे आजम पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, पानी के ऊपरी सतह पर कदम रख करके चलते हुए आ रहे हैं, बजाय पांव भीजने के गर्दों को पार उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुसलमानों होता क्या है, उन लोगों का बयान, फिर क्या हुआ, नमाज का वक्त हुआ, गौसे आजम वहीं रुक गए। अचानक एक मुसल्ला जाहिर हुआ, गौसे आजम उसी मुसल्ले पर खड़े हो गए, वो हवा में मुअल्लक है। अब गौसे आजम नमाज का जैसे ही इरादा किए तो एक नूरानी जमात नाजिल हुई, वो जमात वाले गौसे आजम के पीछे खड़े हो गए। ये सब पानी पर मामला हो रहा है, बात को सुनिएगा, ये सब मामला पानी पर है। अब गौसे आजम नमाज के लिए जब नमाज पढ़ के फारिग हुए, सलाम फेर करके गौसे आजम हाथ उठा करके दुआ किए। उन लोगों का बयान है आसमान से नूर इनके लब में जा रहा था या इनके लब से निकलकर आसमान में जा रहा था, इसका पता नहीं है। बहरहाल ये कि गौसे आजम के लब से लेकर आसमान तक एक नूर की लड़ी लगी हुई थी। अब गौसे आजम दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना रहा हूँ, जो भी कयामत तक मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, मुझसे उल्फत रखने वाला हो, ऐ मेरे मौला, न वो बेगर तौबा के मारे और न पे ईमान मरे, जब मरे तो ईमान पे मरे और जब मरे तो तौबा करके मरे। मुसलमानों उन लोगों का बयान है कि गैब से आमीन की आवाज आती है और गैब से आवाज आती है कादिर तजब तो लगा, ऐ अब्दुल कादिर खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। सुभान अल्लाह। किसको मिला हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु। अब फिर मैं बताऊं मुसलमान, हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते बैतुल असरार सफा नंबर 99 पर है, लौ इनकशफत औरतु मुरीदी बिल मशरिकी व अना बिल मगरिबी लसफरतुहा। इसका मफहूम पेश कर रहा हूं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अगर मैं दुनिया के एक सिरे पर रहूं और मेरा चाहने वाला दुनिया के दूसरे सिरे पर हो और पहाड़ की बुलंदी से गिर रहा हो, गौसे आजम कहते हैं सच्चे दिल से मुझे याद करे, वो जमीन पर बाद में पहुंचेगा, मेरा हाथ पहले चला जाएगा। ये मुसलमानों, ये इख्तियार किसको मिला है, गौसे आजम को मिला है। अब मैं बताना चाहूंगा, जब गौसे आजम की ये शान है तो गौसे आजम के रसूल आजम की क्या शान है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मुसलमानों आला हजरत फरमाते हैं बहजत उस सर की है जो बहजतुल असरार में है, बहजत उस सर की है जो बहजतुल असरार में है कि